Hi, dear students. It is my extreme pleasure to introduce you Dr. Charu Jain, who has secured a rank 217 in this INICT. Just to give her introduction, last year was her first drop. Many of you would be going through that. She got a rank of some 32,000 and now she has turned that 32,000 into 217. Congratulations, Dr. Charu. How do you feel today ultimately? Thank you so much, sir, for such telling out my explaining my journey. But I feel like I'm still not able to absorb it. I am still into dilemma. Like I achieved it because after going into so much ups and downs, now I was into the feeling ये मेरे लिए है ही नहीं. Like I am not able to do this, but I guess hard work paid off. Literally hard work paid off. सो बेसिकली मैं एक चीज तो मैं बता ही दूं पहले ही दिस योर दिस वन इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वायरल प्रोबेबली बिकॉज there are only few people who go through this ups and downs and write the downs. Let us start your journey. How did you when did you start your preparation, which college you are from, etc. Sir, I am from actually Punjab area, and I did my UG from Lady Harding Medical College, New Delhi. So I started my preparation in second year, like pre-foundation course till internship. I was into all my belief की notes बनाने हैं enjoy करना है तो notes बनाए अच्छे से मतलब अपने notes अच्छे से बनाए उनको read कर लेती थी but I didn't go into इतना MCQ practice और internship में still I tried कि मैं थोड़े बहुत TNDs देने start किए और MCQ practice start किया. Then eventually after my internship got over in April 23, I guess in April 23 my internship was over. Then I started preparing for NEET PG. And then I wasn't into TNDs दिया, GTs दिया. Then I landed up with the rank of 9K in I9 November 23. तो उसके बाद फिर मेरे को था कि अब तो नीट निकालने ही है तो उसके लिए फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऐसे जैसे भी मतलब प्रीपोन पोस्टपोन सब हुआ इन बिटवीन आई गॉट INMA में आई गॉट अ रैंक ऑफ 2.5K तो आई वाज लाइक ये हो गया ना अब नीट में इतनी सी रैंक ही चाहिए ज्यादा ऊपर नहीं नीचे नहीं बस हमें इतना सही करना है बट इवेंचुअली जो भी हुआ नीट में आई गॉट अ रैंक ऑफ 32K सब मतलब नेगेटिव ही चला गया मतलब मैं तो सभी मेरे अकॉर्डिंग आई वाज गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक बट पता नहीं क्या हुआ जो भी हुआ देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन एंड देन आई नवंबर में आई गॉट अ रैंक ऑफ 2.8K मैं 2791 आई गॉट अ रैंक एंड देन बट आई हैड अ डिलेमा कि आईने में तो उतना ला रही हूँ नीट में मेरा आ नहीं रहा मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ कि मतलब समझ नहीं आ रहा तो फिर उस हिसाब से आई स्टार्टेड कि अब मुझे पता था कि आई कांट सिट बैक एट होम एंड लाइक डू तो आई थॉट ऑफ कि मैं सीट उठा लेती हूँ मुझे क्योंकि आईने में आके फिर नीट में नहीं आ रहा आईने में आके फिर नीट में तो आई वॉज इनटू दिस थिंक कि उठा ले चारू टाइम लाइन नहीं जानी चाहिए हमारी कि हम डिग्री तो हाथ में रहेगी ना डबल MD कर लेंगे मम्मा पापा सेड कुछ नहीं हो रहा ज्यादा हुआ क्या ही हो जाएगा बट लोग डबल MDs भी तो करते ही है ना कोई बात नहीं तो जो है you stay with the seat. So I got a seat from MD Community Medicine, AIMS Rishikesh. So currently I'm doing the job over here right now also. तो फिर उसके बाद मैंने आईएनए में फिर लिखा फिर सेम सिमिलर रैंक 2.5 2.8K आया एंड देन आई वाज बट दिस टाइम आई वाज लाइक अब नीट में ऐसा नहीं होना चाहिए नीट में अच्छी होनी चाहिए मतलब इससे बेटर होनी चाहिए सो देन आई गॉट अ रैंक ऑफ दिस 217. That is, awesome. I know it was a very tough journey, but at the end, when you look back at your journey, you would say like, okay, you did not give up when, you had tough times. And I think most of the students, you have to take this from this interview, never give up, whenever you are down. So It was let's hard. it would be very hard. I know that because Yeah. मतलब INI में आपका अच्छा आ रहा है. नीट एक्चुअली प्रॉब्लम नीट एक ही बार होता है और पोस्टपोन होता रहता है एंड you will be having that uncertainty kinds. INI is more Yes, certain. sir. You are always fixed to that. चलो तो Yes, so sir. let us look at your journey in the last year. How did you manage? So you said you started in your second year, all that well and good. ठीक है तो how was what was difference between
previous year and this year? कुछ changes आपने किए because your rank has changed significantly? तो लास्ट ईयर में ना मेरा इट वाज लाइक मैं नोट्स पढ़ लेती थी, रिवीजन कर लेती थी, बट लास्ट के 10 डेज 15 डेज जो क्रूशियल पीरियड है ना, आई वाजंट एबल टू हैंडल दैट पीरियड। मतलब उसमें गन मच जाता था कि आई ऑलवेज लैग अप, टू मच लैगिंग हो, क्योंकि मैं फिर मेन नोट्स में भाग जाती थी, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था अंदर से कि यार वो पोर्शन रह गया, यार वो पोर्शन अनटच रह गया। इस बार अपने मन को समझाया, जो रह गया रह गया, जो है वो है। मतलब आपको जो करना है, मतलब साथ में डीवीटी अपना उठाया, डीवीटी अपना अच्छे से उसको अंदर अपने टीएनडी के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने अपना स्क्रिबल डाउन कर लिया, बुक मार्क कर लिया, लिख लिया, वहां पे अपने नोट पैड्स लगा लिए, मतलब अपने सारे स्टिक कर लिए। तो उसके बाद फिर मैंने मेन नोट्स में अंडरलाइन तो इवेंचुअली थे, दो इतनी बार पढ़ ली, अब तो बिल्कुल ही कलर्ड हो गए हैं कि मतलब आई ऑलवेज गो इनटू, अब मेरे को कौन सा पेन उठाऊं, ग्रीन भी हो गया, रेड भी हो गया, ब्लू भी हो गया, बट फाइनली इट पेड ऑफ। मतलब वो सब निकल, मतलब अंडरलाइन सर साथ में, मतलब डीवीटी उठाना सीख गई थी। पहले मैं डीवीटी को समझ नहीं पाई थी कि मैं कैसे यूज करूं, बट लास्ट में एंड में पीवाईक्यूज पीवाईटीज डीवीटी को समझ समझ पाई कि मेरे को उठाना यही है और यही इज द सोल्यूशन। तो वो एक्चुअली प्रिपेयर हम लोग करती हूँ। इसीलिए देते हैं, एंड में देते हैं डीवीटी को, सो दैट यू एंड अप क्विकली रिवाइजिंग ऑल 19 सब्जेक्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे आपको मल्टीपल रिविजन जरूरी होता है। एंड इफ यू गो बैक टू योर नो मेन नोट्स, प्रोबेबली यू विल बी स्टक टू मच। सो दैट्स वाई डीवीटी इज इंपॉर्टेंट, बट इट शुड बी डन एट द लास्ट, नॉट एट द बिगिनिंग बेसिकली। चलो, तो आपने ग्रैंड टेस्ट वगैरह कैसे दिया? हाउ वाज योर जर्नी? ग्रैंड टेस्ट का क्या था? सीबीटीज? Yes, GTs में I started with the score of I guess 97 फाइनल ईयर में दिया था। एंड देन मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, इट्स नॉट लाइक अ वेरी फास्ट जर्नी, बट लाइक आईएनए नवंबर में जब 9 के आए रैंक तो 120 130 टच करना स्टार्ट कर गया। आईएनए मई के टाइम पे 140 टच करना स्टार्ट। इट वाज ऑन लाइक आई ज्वाइन सीबीटी, आई गेव माय फर्स्ट सीबीटी आफ्टर आईएनए नवंबर, उससे पहले नहीं दिया था मैंने। आईने नवंबर 23 में दिया था, उसके बाद मैंने दिसंबर में सीबीटी हुआ, जनवरी में सीबीटी हुआ, फिर फरवरी में हुआ। पोस्टपोन हो गया था एग्जाम, पर स्टिल सीबीटी वाज कंडक्टेड एंड आई गेव 3 ऑफ द सीबीटीज। एंड उसमें भी मेरा वो स्कोर था कि आई वाज स्कोरिंग 120 130, बस 120 टू 130 की रेंज में। तो फिर मुझे पता चल गया कि वेयर आई वाज लैकिंग। आप लोगों का वीडियोस क्विक सीबीटी में आ जाता था, तो वीडियो साथ के साथ देख लिया, एनालाइज सेम डे हो जाता था, एंड सब मतलब फिर पीडीएफ आ जाता। उस टाइम पे तो पीडीएफ भी आ जाता था, तो पीडीएफ भी अच्छे से उसको एनोटेट कर लिया कि एंड में ये पीडीएफ देखना है, इसमें बस ये 4 5 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए सिर्फ ये देखने हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना है। तो उसके साथ तो एंड फिर उसके बाद फिर नवंबर में सीबीटी दिया। अब अभी रिसेंटली आपके जो मॉक टेस्ट हुए उसको दिया वो सब। okay, so one more thing people keep asking me, since you had a very long journey also, तो आपको कभी फोमो हुआ कि यार यार मैं गलत कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, कहीं कभी हुआ? एवरी टाइम, ईच एंड एवरी। एवरी तो टाइम। हाउ डिड यू मैनेज इट? सोचना छोड़ दिया सर कि अब So you stuck to your DAMS notes despite having all these this one, कि बीच बीच में होता रहता है कि यार मैं गलत कर रही हूँ क्या, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, all those things, but you still stuck to your notes and ultimately it यस gave सर। you good results. सर द थिंग इज ना, आना उसी नोट में से ही है। मतलब आई नो आना, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर, मतलब मेरी फ्रेंड है कानन, शी रियली रियली इम्फेसाइज कि चारों तू उस 3 या 4 क्वेश्चन के पीछे मत भाग जो बाहर आएंगे। जो सब सही कर रहे हैं ना, हमें वो सही करना है, हमें वो गलत नहीं करना जो बाकियों का, मतलब जो क्वेश्चन बाहर से वो किसी का सही हो किसी गलत, उसका कोई मतलब नहीं है ना। पर जो सब सही करे उसमें अगर तू गलत करिए तो तू पीछे हो जाएगी, वो पीछे बिल्कुल, नहीं होना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स द थिंग। दैट इज व्हाट शुड बी योर अप्रोच, कि जो सब लोग सही करते हैं उसको सही करो, जो गलत कर रहे हैं उसमें गलत हो जाएगा तो भी चल जाएगा आपका। चल जाए, एंड वो हाँ। सब सही आपके नोट्स में से आएगा। दैट इज ऑलवेज देयर। सो अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपका व्हाट इज योर फील स्ट्राइक रेट, व्हाट वाज द स्ट्राइक रेट, फ्रॉम वेयर डिड यू फील कि नोट से आया, सीबीटी, डीवीटी, पीवाईक्यू, पीवाईटी, सो मेनी थिंग्स यू डिड, लाइक व्हाट वाज द परसेंटेज अच्छा, अप्रोक्सीमेटली इन सब मिला के? इस सर एक्चुअली दिस टाइम ना नीट वाज, कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं था कि बाहर से हो।
दिस Okay. टाइम 200 के 200 क्वेश्चन वाज आपके जितने जो आपने नोट्स दिए, आपने जो डीवीटी दिया, सब उसमें से था। डीवीटी में तो लाइक माइक्रो के क्वेश्चन तो ऐसे मतलब उन्होंने ना बज़वर्ड्स ऐसे दे रखे थे कि आओ आओ जाके मुझे क्लिक करो। मतलब it was this time I felt like the paper was in such a way like I remember मई में जब मैंने डीवीटी किया था तब नोट्स में से मुझे लगा ज्यादा प्रोपोर्शन है पैथो के नोट्स में से आपके इंस्टेड ऑफ डीवीटी। बट स्टिल डीवीटी में ऐसा नहीं था कि मैं कवर अप। एक्चुअली वो होता है ना कि लास्ट की मेमोरीज जो बचती हैं उसके लिए डीवीटी वाज वेरी गुड थिंग कि आपका, क्योंकि लास्ट में होता है आप कंफ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस के अंदर, पर जो विजुअल मेमोरी रहती है वो डीवीटी ने बना दी थी। दैट वाज वेरी गुड थिंग। Okay, और so that पीवाईटीज आई डिड। हाँ। okay. So on a personal note, what do you want to pursue again? Already you are having your half community medicine degree now. I wanted to go into medicinal branches side, but I am like into dilemma. Everybody is giving me inputs कि अब तो तेरे रैंक ये आ गया, टर्मिनल ब्रांच की साइड जा या ऐसे जा. So taking So out like yes, will think about. take time and decide जो भी करना है. If you Yes, sir. want to give any advice to your juniors who are listening, especially for post interns, मतलब आपने कुछ गलती किया हो, आपको लग रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली ये नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल ही करना चाहिए, और एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम. सर दीप्ति मैम ने ना रॉन्ग कॉपी का कंसेप्ट समझाया था। वो कॉन्सेप्ट मेरा इतना अच्छा लगा। मैंने रॉन्ग कॉपी लास्ट के 2 दिन में मतलब 31st और फर्स्ट मेरा एक्चुअली मैंने अपना शेड्यूल ही ऐसे बनाया था कि सेकंड वाज माय फ्री पीरियड क्योंकि मुझे घर वापस जाना था। तो 1 को मैं वापस गई घर और सेकंड को आई वाज लाइक कि कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत जो लास्ट के टेबल देखना। तो 30 है तो 31st वाज माय पीरियड कि मेरे को सिर्फ अपनी रॉन्ग कॉपी पढ़नी है और कुछ नहीं। और रॉन्ग कॉपी वाज द की क्योंकि रॉन्ग कॉपी से आई कुड लिटरली से मेरे 15 क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी में से थे। मतलब जो That पूरे 200 में से 15 that क्वेश्चन। तो that is a very good high number. Approximately 10% आपके wrong copy से ही आ गए. So you all रॉन्ग students कॉपी have to maintain one wrong diary, wrong copy, whatever you call it. जहाँ गलती कर रहे हो, it should be maintained. Any other advice you want to give any other advice? जीटीज गिव फ्रीक्वेंट जीटीज लाइक मैं डरती थी बट स्टिल आई गिव लाइक लास्ट के 3 महीने में मैंने अप्रोक्स 15 जीटी दे दिए होंगे। मतलब आई इंक्रीज माई फ्रिक्वेंसी क्योंकि इवेंचुअली गेम आपका एमसीक्यूज का है। इवेंचुअली गेम आपको वो फियर को फेस करना है कि जो है तो है। तो दैट वाज द थिंग कि और इवन दो मेरे स्कोर से इट वाजंट वेरी मच लाइक आई स्कोर्ड अराउंड 150। मेरा हाईएस्ट 158 गया है जीटी में, ज्यादा नहीं गया। आई हैव सीन स्टूडेंट बट आप मैम ने सर ने कहा था कि अपना जो नीट देना है वो आपका बेस्ट जीटी होना चाहिए। तो इट केम आउट टू बी ट्रू, दिस वाज माय बेस्ट जीटी स्कोर मतलब जो नीट का पेपर था। Chalo. So thank you very much. I would again thank you and congratulate you for getting such a huge rank from the whole of the DAMS थैंक यू सर। family, and best wishes for your future endeavors. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल द डांस फैकल्टी आउट देयर। थैंक यू सर। You're welcome. You're welcome. थैंक यू।